यहाँ आए ही खरीदने के लिए मस्ट हो गया। अब आपको ना करके भी 2-3 ड्रेस तो लेनी ही पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। वो चाय इतनी महंगी पड़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक, बेटा कोल्ड ड्रिंक लिया जल्दी से मैडम के लिए, बोला भाई के लिए। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अबे मैं नहीं पी लूँ, हो सकता है। अच्छा नहीं, अच्छा पता नहीं साथ पड़ी होती है कैसी, ठक आ गई कोल्ड ड्रिंक। बंदा क्या करे। एक दफ़ा ऐसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है इंडियन ट्रैवल व्लॉग 3 कोरियंस फर्स्ट विजिटिंग इंडियन मार्केट मोमोज। स्टार्ट करते हैं। Korean mission is to provide education and cultural exchange for Indian youth. We invite our Indian friends to love and support us. Thank you. I love you. Today 채널을 오늘은 블루 슈퍼카를 타고 이제 릭샤를 타고 한 3분 거리 정도밖에 안 되는 에어로시티 메트로 스테이션으로 가겠습니다. Hello. Go to metro station, Aerocity. Yes, metro station. How much? 50? Okay. 네, 여기서 릭샤를 타고 가는 거에 대해서는 조금 익숙해졌어요. 그리고 가만히 보니까 짧은 거리들 있잖아요. 그러니까 차를 타고 한 5분 이내의 거리들은 다 50루피로 갈 수 있는 것 같아요. 그러니까 평균 가격이 50루피인 것 같아요. 에어로시티 메트로 스테이션은 50루피로 가고 있습니다. 우리 이거 어떻게 넘어가? 난 또 넘어가는. 오케이. 근데 저희는 사람들이 많이 방문하는 마켓 중에 하나인 라즈푸드 나가르 마켓에 왔습니다. 여러 의류를 볼 수 있고 또 시장이니까 다양한 걸 경험할 수 있다 그래서 바로 이렇게 시작이 됩니다. 이제 한번 돌아보겠습니다. 어떤지. And I need more. 프루타 or or the other 가가라? Something like that. Yeah, because I also love to wear the Punjabi style outfit. Thank you. Wow. So maybe we needed to pick one of them. But I do love to go some nice. I just look around this place, and after that I will choose one of the stores, one of the shops, and go inside and try some Indian clothes. 여기서 우선 좀 돌아보고 파악을 해본 다음에 그 다음에 한 군데 골라서 들어가면 좋을 것 같아요. 어떡해, 다 쳐다봐서 부끄러워. येलो सेम है हेयर एक्सटेंशन येलो एक्सटेंशन देख लो इधर पूरी वैरायटी है वीडियो बना लो भाई 네네 아니요 와 이쪽에 오면은 너무 많은 종류의 상점들이 있어서 뭐 다 있어요. 액세서리, 옷, 뭐 벨트, 가방, 보석, 뭐 집에서 장신구, 뭐 먹을 것도 있고 다 있어가지고 정말 약간 로컬 인도 로컬의 뭐 그 시장 모습을 구경하고 싶고 보고 싶고 그 다음에 인도 사람들이 좋아하는 아이템이나 약간 선호하는 아이템들이 뭔지 알고 싶으면은 여기에 와서 구경하면 될 것 같아요. Okay, I will try. 원래 originally when you buy the saree, like we need to talk about this? Sitting here? Really? Yes, exactly.
can check. Okay. Them. If you ask them, they can. I see. 2000 cash for operation. 2100 operation. 2000. 2000. Normally, what is the most popular these days? This one? But this one look like it's brighter, longer. But, Bridal नहीं ना थोड़ा सा. but except this, 한국에서는 그렇게 사리 사기가 힘들었는데 여기서는 이렇게 다양한 종류의 사리들이 다 1175, 1500 루피, 2000 루피, 2300 루피, 800 루피. 그러니까 괜찮을 것 같아요. 이게 다 이 정도면은 만 얼마, 2만 얼마 이 정도인 것 같아요 가격이. Same price? But my height is tall, but it is okay. Okay. 오. 그 주황색 패티코트 입으면 괜찮겠다. 오케이. 우선은 이거 색을 이렇게 해볼 수 있으니까 만약에 내가 이걸 이렇게 걸치게 된다면 이런 식으로 색깔이 나오잖아. 이렇게. 오, 좋은데? 이건 이렇게고 네. 그 다음에 another one 이거는 no. No, ये नहीं है. 그건 안 어울려. Yeah. No. 이거는 어떤지 한번 대보기만 할게요. 이렇게 되겠죠? 이렇게. 이거는 1975입니다. 여기 조금 좋습니다. How about this one? You don't think this is 백간쇼가 말해주기를 보통 이렇게 플레인으로 된 무늬가 왜 우리나라 사람들은 워낙 심플하고 플레인한 거 좋아하니까 이런 것들을 좀 나름 고급스럽게 보이거든요 제 눈에. 근데 이게 인도 사람들이 보기에는 백간쇼 말로는 약간 조금 싼 거. 너무 노멀한 것들, 팬시 보이지 않은 것들이라고 해서 개인적으로 추천하지 않는데요. 오케이, 오케이. 오케이. This is good? Your favorite? 이것도 오, 그거 좋다. 이것도 이렇게 되고. 아이슈즈. You wanna this? 야. 저게 아까 좀 비싸게 파는 사리라고 합니다. 근데 이 사리는 1275. 1275에 이런 색깔입니다. 블루가 잘 어울리나요? 그리고 이건 이거. 어떤 게 더 잘 받죠? 그것보다 자주색이네. 네. 그거 좋다. 900원. 원래는 900루피인데 1275 정도 되고요. 다 비싸고 다 사기를 로컬이 보기에 그래서 그래요. 이 색깔 이거 좋아요? 이것보다 더 좋아요? 아니요. 어떤 게 색깔 더 좋아해요? 이걸 더 좋아해요? 네. How about you? 당신은 어떤 색깔 더 좋아해요? 이거 더 좋아요? 그런 거 같네요. 한국 사람은 이거지. 됐어? Yeah. Can I try you? Just cover of this. 뭐라는 거예요? 아, 그거 패티콧 대신 그 위에다. 이 위에다가요? 이렇게 할 수 있군요. They are just like tying this so that you can wear the other one. 아하, 오케이, I see. 이 인도 사리샵에 와서 드디어 내가 이것저것 다 입어볼 수 있네요. 한국에서는 이렇게 할 수 없어요. 왜 인도 사람들이 why Koreans always wear black and white? It's Yeah. so simple. It's not fancy. Why they always wear like that? I understand more because after singing this, so many beautiful In the colors. We 인도 are 사람. many colors. Right. 와, 잘하신다. 이것 봐. 플리츠. 우와. But I don't have any confidence because he is very professional. 와, 와우. 와, 와, 너무 아름다워요. 너무 좋아. Beautiful. 이거 Every, 참 every,
모두 다 나를 보고 있어. 이거 꼭 사야 돼. 이거 꼭 사야 돼. 이거 베스트템이야. 이 사리는 제 스타일이에요. Do I look good? Yes. Everyone, just say something for me. 너무 아름다워요. Thank you. Thank you. Okay, can I try another one? Different style. Not this style. 이제 다른 스타일로 한번 입겠다고, 다른 스타일로 입겠다고 요청을 해가지고 또 다른 스타일을 만들어주신 거. 신기한 게 두 분이 여기서 이렇게 만들어가지고 저한테 딱 씌워주기만 하면 되는 느낌이에요. Yeah, Gujarati style. 구자라티 스타일? No, this time they will do Gujarati. 구자라티 스타일. 구자라티 스타일로 입어보겠습니다. 여기 다 남자만 입고 혼자 여자. 오케이, 이제 좀 다른 스타일로 또 입어보겠습니다. 제가 개인적으로 사고 싶었던 색깔이에요. 오케이. 여기가 좀 더 풍성하게 이렇게 물결이 되듯이 하는 게 구자라티 스타일이고, 구자라티 스타일은 또 이렇게 뒤에서 앞으로 이거를 Front pallu. 플랜트 발로 Yes. 핀으로 이쪽이랑 이쪽을 마지막에 딱 고정을 하면은 여기 이제 완벽한 구자라티 스타일의 살이라고 할 수 있습니다. 이렇게 확실히 이렇게 패셔너블하고 여기 정갈하게 이게 플리츠가 딱 정확하게 되어 있는 게 전문가의 손길은 다릅니다. And do you also have a blouse? In the blouse, this has a 같이 있는데 그거 만들어 한다. 엔드 파트. 아하, got it. 그래서 블라우스를 입을 때는 여기가 속에 비치는 소재니까 그 안에 라이닝이라는 게 뭔가 한 번 더 입고 이걸 한다고 합니다. It's good? Yeah? Just for selling or for seriously? For seriously. Don't lie. You should tell truth. Green one and the orange one. discount कितना लगेगा भैया? Discount. 더 디스카운트를 해달라고 부탁을 하고 있어요. 왜냐면 사실 부르는 게 가격인 것 같아요. 그렇기 때문에 우리 시장에서도 많이 이렇게 알긴 하잖아요. 그래서 저도 한번 4,300에서 그다음에 디스카운트를 해서 3,350이 최종 가격입니다. 나쁘진 않은 것 같은데 로컬한테 한번 물어보겠습니다. Is this good price? As a local, you think? It is. It's little. He said it's a little expensive. Yeah, it will be expensive. Okay, I will pay this. But just say something together for me. Please subscribe. Jairas Korea. Thank you. Bye. 땡큐. 다녀봐. 다녀봐. 돌마 이모가, 돌마 안티가 만드는 모모를 먹으러 가겠습니다. 돌마 안티 모모스. 약간씩 배고파요. 약간 우리가 이제 조금 쉬어가기 위해서 여기서 모모를 먹으러 가려고 합니다. 바니를 하프 and 베지. No, it's okay. 베지 하프, 바니를 하프. 여기서 저희가 너무 지금 복잡하고 뭐 간판대도 없고 먹기 힘드니까 하나씩 주겠대요. 그래서 모모를 하나씩 주면은 그걸 하나씩 먹는 걸로 이렇게 얘기를 했습니다. 바닐? Paneer. Okay. Okay, I will try. And It is going to be very hot. hot, 알려하. but I'll try. Yes. 맛있다. 이게 이 소스가 되게 매운 소스야. 되게 really spicy. Yeah, really. 나 인도에서 스파이시 하다 그래도 웬만하면은 그냥 노말했어. 원래도 매운 거 잘 먹으니까. 근데 이 소스는 진짜 좀 스파이시해. 너무 맛있어. And this looks like this. And try you. 맛있어.
맛있는데 맵다 나는. 그래? Because I like it. It is a 모모. mix of sweet and 빠니를 모모. 안 매워? 그러면 너무 스파이시. 오케이. 이거는 이제 배지입니다. 배지. 아, 이 하얀 소스가 슈거하고 코코넛을 믹스해서 만든 소스라고 하고요. 그래서 이 하얀 소스에다가 요거 아까 그 메오세스 소스를 다시 넣어서 이번엔 배지 모모. This is also so great, but I like the paneer momo more. Which one is better for you? Paneer? Yes, paneer is better to me. Paneer is more, the flavor. yeah, flavor. Wow, this is so great. Let me try. How about this? What is this sauce? This is the more spicy one. More spicy and this normal? This is normal. Okay, more. This is more spicy sauce. So this is a paneer fried momo. 맛있어. 맛있다. 와, 진짜 맛있다. This is made from green chili and this is red chili. Ah, green chili, red chili. And the last one, I really recommend to eat this. Okay. How much is it? It is 230. 230. 오케이, 이제 이동하겠습니다. 오, 이렇게 바로 실시간으로 재서 이런 사이즈 오픈. they measured my size in real time. जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त फर्स्ट व्लॉग इनका हमने देखा। कोरियन कोरियन, किस सिटी में आपको लग रहा है? मुझे मुंबई लग रहा है, ओ सॉरी दिल्ली लग रहा है। मुंबई या दिल्ली, सही कह रहे हैं। मुझे दिल्ली लग रहा है। लजपात लाजपात मार्केट मुंबई लाजपात होगा। मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पता नहीं किसी ड्रामे वगैरह में भी नाम सुना है। आई थिंक मुंबई भी लग रही है मुझे। अच्छा, बाकी ये है कि एक चीज़ और देखी हमने कि इन्होंने कोई ड्रेस छोड़ा ही नहीं, मतलब सारे ही पहन के देखे, सारे ही। मुझे ऐसा लगता है जब लड़कियां शॉपिंग करती हैं तो ऐसे ही होता है। इतना टाइम यार, इतना टाइम एक एक चीज़, एक एक साड़ी देखी, फिर देखी, फिर पहन, पसंद आती है चीज़ें। फिर जब जाके अच्छा एक चीज़ होती है कंफ्यूज, जैसे आप बता रही थी कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, तो बाज़ मरतबा जब वो लेके ना जाए तो दुकानदार पे क्या गुजरेगी, मैं ये बताएं मुझे। आपकी बात- अच्छा, बाज़ दफ़ा नहीं भी लेती आप अक्सर नहीं लेती तो होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाता है ना। और पता है एक दफ़ा तो ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि एक शॉप के ऊपर मैंने बहुत सारी ड्रेसेस निकलवा ली। सही। अब हुआ ये कि या समझ ही नहीं आया। अब या तो वो बहुत ज़्यादा भरे हुए ड्रेसेस दिखा रहे या तो बहुत ही सिंपल दिखा रहे, और मुझे थोड़ा मीडियम टाइप का चाहिए था, मतलब फैंसी सा हो। अब मैंने देख ली, उसके बाद साड़ीज़ ही थी, ड्रेसेस बोल रही हूँ, साड़ीज़ ही थी। तो साड़ीज़ या तो वो नेट पे दिखा रहे थे भरी भरी सी, और मैं चाह रही थी थोड़ी सी क्लासी, थोड़ी सी सिंपल, थोड़ी सी नफीस टाइप की हो, फैंसी टाइप की हो, इतना वर्क ना हो, लेकिन कपड़ा वगैरह स्टफ उसका अच्छा हो। हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है साड़ीज़ की इतनी वैरायटी नहीं है, क्या मसला, नेट पे वो ज़्यादातर दिखा रहे थे। आपने यहाँ पे देखा डिफरेंट स्टफ्स थे बहुत ज़्यादा। तो ना उसके बाद हमने मना कर दिया उनको, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गए। उन्होंने कहा मेरे पास इतनी वैराइटीज़ हैं, आपको क्यों नहीं समझ में आए? मैंने कहा मुझे आप जो स्टफ़ दिखा रहे हो वो स्टफ़ नहीं समझ में आ रहा, मुझे नेट पर नहीं चाहिए, आप मुझे या तो शफून पे दिखाइए या बनारसी टाइप का कोई स्टफ़ दिखाइए। तो उस पर कहने लगे जो मैंने आपको दिखाया उसका क्या, उतनी मेहनत का क्या? तो मैंने कहा आप मुझसे चार्ज करोगे उसका चार्ज करते हैं। तो मेरे कहने लगे तो फिर हम यहाँ पे दुकान पे जो बैठे हैं इतनी मेहनत करते हैं। मैंने कहा आप जैसे मेहनत करोगे वैसे सब करते हैं, तो सब चार्ज करते हैं क्या? अगर दिखाते हैं, आपका तो काम है दिखाना, नहीं समझ आया या समझ आया वो अच्छा, तुम्हारी मर्द बात इस चीज़ को बहुत फील करते हैं। बहुत मर्द feel अगर करते नहीं, मर्द अगर शॉपिंग कर रहा हो ना वो तो नहीं करते। अक्सर मना कर देते हैं, नहीं वो नहीं दिखाओ आप अच्छा पहले ही बोल देते हैं मर्द। आपको पता है होता क्या है कि आप मना भी करते रहो ना तो नहीं, वो शॉपिंग के ज़बरदस्ती अंदर एक दिखाते। आदत होती है। अच्छा रुके, मैं इससे बहुत अच्छा दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। ये करते 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 उन्होंने कई थान खोल अच्छा, दिए। एक चीज़ और मैंने नोट की है कि वो बहुत सारा जो चीज़ें दिखाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी दिखाते हैं कि कस्टमर शर्म के मारे ही ले लेता है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि शायद या इतनी मेहनत कर दी या अब तो मना करते हुए बुरा लगता है कि यार अब मैंने इतने 100 थान खुलवाने के बाद बोलूँ कि मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल, तो वो फिर अक्सर जो है ना बहुत सारी मेहनत इसलिए भी अच्छा फटाफट खोलते हैं, खोलते फटाफट है कि आप
यहीं पर चिपक जाओ, आप यहीं पता है- अच्छा अभी तो ऐसा भी मैंने देखा है दुकानों पे कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही है, चाय मंगवा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं। मतलब क्या अच्छा ऐसा लगता है अब मैंने खरीद ही लिया। अब आपको खरीदनी पड़ेगी, खरीदी नहीं, अब वो आपको शर्मिंदा कर दिया कि अब आपने चाय पी ली, अब आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली। ऐसा अब लग आपको रहा लाजमी है कुछ ऐसा ना- लग रहा है हम यहाँ आए ही खरीदने के लिए। खरीदने के लिए मस्ट हो गया, अब आपको ना करके भी 2-3 ड्रेस तो लेनी ही पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही, वो चाय इतनी महंगी पड़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक, बेटा कोल्ड ड्रिंक क्या जल्दी से मैडम के लिए, बोला भाई के लिए। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अबे मैं नहीं पी लूँ, हो सकता है। अच्छा नहीं वो अच्छा पता नहीं साथ पड़ी होती है कैसी, ठक आ गई कोल्ड ड्रिंक। एक दफ़ा ऐसा बंदा हुआ- क्या करे? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम किसी के साथ चले गए, मेरी कज़न है, उनकी शादी थी, उनके यहाँ चले गए उनके साथ। अब उन्होंने पता है सामान इतना निकाल लिया, आप यकीन करें 50,000 बिल, और हमारे पास 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। तो कम फिर करवाया हम- पड़ा अब हम उनसे बार्गेनिंग करने लगे, तो चाय मेरे हाथ में, तो मैंने दिल में सोचा चाय पी लूँ, कहीं बात ना बने कब वापस छिल्ले, कितनी इंसल्ट है। मैंने जल्दी ना चुस्कियाँ मार के चाय पी ली। मैंने कहा जब चाय पी ली ना उसके मेरी टेंशन खत्म हुई। कितना बुरा लगता है कि वो बोले लाइक बस सही ठीक है, हमारा सौदा नहीं बन रहा, आप निकले बाहर। अच्छा इनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, और अगर ये बहुत अरसे तक इंडिया में व्लॉग बनाएंगे तो मेरे ख्याल में इनको हिंदी भी थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। एक व्लॉग हमने देखा था जिसमें कम से कम 2 लफ्ज़ तो बोल लेते थे वो। चलो कितने पैसे हुए, कितने पैसे हुए, चलो बड़ा अच्छा वो उनका भी व्लॉग होता था। अच्छा एक चीज़ और थोड़ी सी मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप लोगों से पूछनी है, जितने भी फॉरेनर्स हैं ज़्यादातर इंडिया में आके व्लॉग बनाते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि इंडिया में, एक तो इंडिया बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही जगह है डिस्कवर करने के लिए, और जितने भी लोग हैं, अगर कोई व्लॉगर है इंटरनेशनल व्लॉगिंग करता है वो इंडिया में ना है ये मुमकिन ही नहीं। और एक और मज़े की चीज़, बिल्कुल कॉमन आम इंसानों की तरह घूम रहे हैं। आप क्या पूछने वाले थे? यही कि क्या वजह, ऐसी क्या ख़ास वजह है कि ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया का रुख करते हैं? अरे तो हम तो जानते हैं क्या वजह है। बिल्कुल ना, कि यार ज़्यादातर हाँ ज़्यादातर जो लोग पूरी दुनिया में कहीं भी व्लॉगिंग करते होंगे लेकिन इंडिया का रुख ज़रूर करते हैं। इंडिया का रुख ज़रूर करेंगे, और इंडिया के अंदर बेतहाशा वजूहात हैं। आपने देखा डिफरेंट मार्केट्स हैं, डिफरेंट टाइप की जगहें हैं, प्लेसेस आप देखें, थोड़ा सा आपको याद होगा 50 मीटर के ऊपर तो वहाँ पे ज़बानें चेंज हो जाती हैं, कल्चर चेंज हो जाता है, खाने पीने चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। अच्छा, और कोरियन मुझे ऐसा लगता है इंडिया जैसा कंट्री उनको कोई और मिलेगा भी नहीं दुनिया में। यूरोप, अमेरिका, जापान, ये कुछ कंट्री के तो हमने व्लॉग देखे हैं जो इंडिया में कर रहे हैं। कोरियन का पहला था ये, कोरियन का पहले, और इस लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब है कोरियंस की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। हाँ कोरियंस की बहुत ज़्यादा होती बहुत है, हाइट। अच्छा थोड़ा सा हेल्थ इनकी बहुत कम होती है, अच्छा स्लिम होते हैं। जापान और कोरिया, इनमें थोड़ा सा फेस का फ़र्क है, इनका लंबाई में लगा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा। आपको मायो जापान याद होंगी, बिल्कुल उनका याद है। फेस थोड़ा सा राउंड शेप में है। थोड़ा सा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब फेस कट में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा। करीब देश हैं ये दोनों, अच्छा कोरिया, जनूबी कोरिया और चाइना, ये सब एक जैसे फेस होते हैं यानी ज़्यादातर। कि जापानीज और कोरियंस मिलते हैं। अच्छा देखिए एरिया के हिसाब से शक्लों में फ़र्क आ जाता है, लुक के। अब जैसे एशिया के लोग हैं, अब यहाँ अच्छा एक देखें, थोड़ा सा दूर उधर चाइना है, इधर इंडिया है, वहाँ अलग तरह के लोग हैं। अच्छा जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर में भी इंडियन चाइनीज़ की तरह भी हैं। सही। जैसे हमने मनाली देखा था, अपने चित्राल गिलगित देखते हैं तो वो भी चाइनीज़ से मिलते हैं, तो बॉर्डर में उनका असर है। अच्छा इधर आते रहो फिर वो चीज़ ख़त्म होती जाती है। तो लेकिन फिर जैसे हमारे यहाँ है कराची, ये अलग लोग हैं। कराची और दिल्ली के लोग सेम होंगे, मुंबई के लोग सेम होंगे, कराची के, मुंबई के लैंग्वेज स्टाइल। मुझे अक्सर व्यूअर्स मैसेज करके कहते हैं कि मैम आपको दिल्ली में छोड़ दिया जाए ना तो आप मिक्सअप हो जाओगे, है ना। मतलब अक्सर लड़कियाँ आपके टाइप की होती हैं वहाँ। अच्छा। तो मुझे तब पता चला कि अच्छा हमारी रिजेम्बलेंस है। वो मेरे जैसे लड़के कहाँ होते हैं? तो ये है कि मेरे जैसे बंदे आपको कहाँ मिलेंगे? मुंबई में, हाँ मुंबई में भी हो सकते हैं, दिल्ली में भी हो सकते हैं, दिल्ली में भी। नॉर्थ साइड आपके हवाले से एक ने एक कमेंट ये किया था कि लखनऊ वो तो का है ना, स्टाइल आता है, लखनऊ का, तो वो तो है ना। वो तो है, वो तो मुझे न्यू इसलिए लगा दिल्ली क्योंकि दिल्ली से नहीं है इतना। अच्छा ये मार्केट कहाँ है? ये मार्केट है हमारी दिल्ली में, हमारी दिल्ली में। हमारी दिल्ली में। क्या बात है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका अनकॉन्शियस हो जाना, खो जाना हमारी दिल्ली में, क्या बात है। ये हमारा प्यार देखें आप, ये हमारे वंशज ये हमारा की देन है, प्यार ये हमारे वंशज की देन है। आपको पता है परसों ही मैं कुकिंग कर रही थी किचन में, तो अचानक मेरी मामा पीछे से आई, तो भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो कहने लगी मेरे प्राण तो मेरे बेटे में बसते। अम्मा कह रही है। अचानक मैंने उनको मुड़ के देखा, मैंने कहा एक सेकंड, इनको तो बोलना चाहिए था रू मेरी जान, हम तो जान और रू बोलते हैं, प्राण बोल रही हैं।
तो मुझे फिर उस वक्त लगा यार जो भी है आपके पूर्वज, आपके जो एक एंसेस्टर है ना, उनका जो एक आपकी जेनेटिक्स में जो बात आ जाती है, जो चीज़ आ जाती है ना, तो आप लाशौरी तौर पे भी कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते ऐसा है, हो, बिल्कुल क्योंकि ऐसा है। प्राण हम सुनते रहते हैं, लेकिन मामा का बोलना मुझे थोड़ा अजीब सा और लगा। एक और चीज़ आपने शायद नोट की हो नहीं की हो कि हमें मतलब एक हिंदी का वर्ड है, मैं आपको बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक हिंदी का वर्ड है, वो हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना हो। लेकिन हाँ मीन पता होता है। लेकिन हमें उसकी रूह का थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर होता है कि ये कहाँ क्यों यूज़ हुआ है और इसके मायने क्या बनते होंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, आप यकीन करें, मुझे नहीं पता मेरा पहला जन्म इंडिया में था क्या नहीं था, मुझे नहीं पता। मैंने कल रात में एक सॉन्ग सुना, इंडियन आइडल में एक लड़की है वो गा रही थी, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे इससे पहले कभी नहीं सुना, मेरे पता नहीं सबका भजन है ये, जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता। ये मैंने 4-5 दिन पहले ही एक लाइव में सुना, लाइव। सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, भजन है बड़ा मशहूर। वो गा रही है सत्यम शिवम सुंदरम। अब वो जैसे मुझे इतना अट्रैक्ट करा, और पता है मुझे खुद ब खुद उसका मीन क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है सच बहुत खूबसूरत है, जबकि मैंने ना सत्यम शायद सुन लिया हो, लेकिन और इसमें एग्जैक्टली मुझे मीन नहीं और पता। इसमें आगे वर्ड्स कुछ इस तरह के हैं कि वो हमेशा से है और हमेशा है और हमेशा रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा भी ऐसे हाँ, लफ्ज़ ऐसे हैं। अब मैं वही सोच रही हूँ यार, मैंने कहाँ सुना। अच्छा, मैंने नहीं सुना। मैंने उस बच्चे की वीडियो अपने साथ बनाई, नाबीना है बच्चा, एक 14-15 साल का, और मैंने सोचा था कि मैं अपनी किसी वीडियो के दरमियान में उसे लगा दूंगा। मैंने उससे पूरा पढ़वाया, पूरा उसने भजन गाया, भजन था पूरा गाया उसने, सही। और एक जगह उस्ताद बैठे हुए हैं ये वो, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। जिसके मोबाइल में वो रिकॉर्ड हुआ, वो मोबाइल ही चोरी हो गया, मोबाइल के साथ ही वो चला गया। दोबारा से रिकॉर्ड हो जाएगा। दोबारा नाबीना है वो बच्चा, लेकिन भजन बहुत प्यारा है। हाँ। बाकी एक अचानक मैंने कहा किसी वीडियो में जिक्र करूंगा, अचानक एक और बात याद आ गई। वो बात इस वीडियो से बिल्कुल अनरिलेटेड है। मेरी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, बड़ी डिटेल से मुलाकात हुई, बड़ा कानों में बात करके मेरे से बातें की उसने ख्वाब में। यकीन करें शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई, और मजे। आपने कहा वीडियो से रिलेटेड नहीं, ये नहीं है ना? तो रियल लाइफ से भी रिलेटेड नहीं है। अच्छा आपकी बातें अच्छा, बता रही अब हूँ सुने, नहीं बताऊँ, चलो सॉरी। अच्छा आगे बताऊँ। हम ब्लॉग्स की बात कर रहे थे, अच्छा आगे, मार्केट की बात कर अच्छा रहे आगे सुने, कहाँ मुलाकात हुई? थे। कहाँ मुलाकात? मतलब वो कहीं रुके हुए हैं, मुझे इंडिया में अचानक नहीं, कहीं भी कराची में कहीं भी रुके हुए हैं, मुझे पता चला, मैं ऊपर था दूसरे थर्ड फ्लोर पे, नीचे सुना शहबाज शरीफ रुके हुए हाँ, हैं, सही है, तो आप वहाँ आगे मुलाकात नहीं, हुई। मैं भाग गई। सुने तो सही, मज़ेदार बात। गार्ड खड़े में बात हुई, ये वो। मुलाकात कैसे हुई? वो पता नहीं बीमार लग रहे हैं क्या है, बिस्तर पे हैं, तो मैं बिस्तर में बैठ के उनसे बात, अथॉरिटी देने आए थे। सुने तो सही। जी। अच्छा, बिस्तर पे यूँ लेटे हुए, तो मैं यहाँ बैठ के उनसे बिस्तर पे बात कर रहा हूँ, बेड पे ही। ये मुझे समझ बहुत लिया। अजीबोगरीब से सपने हैं आपके, बहुत ही अजीब। तो सपने होते हैं अजीबोगरीब। वो सुनैना, ऐसी सुनैना कुछ कहता है उसका सपना। मैं बचपन में एक ड्रामा देखा करती थी, उसमें एक लड़की थी, उसको कुछ भी सपने आते थे और रियल हो जाते थे। उस मुझे वही याद आ गई अभी आपका सपना। नहीं, रियल नहीं हो कुछ भी रियल हो जाता था। नहीं तो अच्छा, सपने बड़े अजीब से ही होते हैं, मतलब वो हो रहा होता है जो होता मुमकिन ही नहीं होता, जो अजीब से ही। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अक्सर वो ख्वाब आते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है। एक शख्स रहता कहीं है तो कहीं मुझे दिख रहा होता है, अच्छा, मतलब वो अपने रियल घर में नहीं दिख रहा होता, कहीं और दिख रहा होता है, जगह चेंज हो जाती है मेरे सपने में। जिसका जो घर है, जिसकी जो जगह है, जिसकी जो पोजीशन है, मुझे वो वहाँ दिख रहा होता है, कोई वहाँ दिख रहा होता है। ये एक उलझे हुए सपने। करैक्टर अलग हो जाते हैं, ऐसा सबके साथ होता है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये जो महिला थी ये कैसी लगी लुक अच्छी, वाइज? बहुत अच्छी, स्मार्ट, क्यूट, मतलब और मुझे attractive शर्मीली भी लगी। लगी, थोड़ी सी शाय भी लगी। शाय भी हैं और अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल। हाइट बहुत अच्छी, हाइट बहुत अच्छी है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।